हरे कृष्णा। तो आप सबों को मैं स्वागत करता हूँ निताय चंद निमाई दास आज की सुबह की कक्षा में। तो हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जीवन के बारे में बता रहे हैं कि भक्तों का जीवन कैसा होता है, और जो कि भगवान के नाम के प्रचार की प्राण है या फिर एसेंस है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। तो वो क्या प्राण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटा सा हरिनाम से कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So, welcome for today's morning class once again. So, hopefully I am loud enough and clear. If everything is okay, please unmute yourself and say Hare Krishna. Or you can write down that everything is okay. Hare Krishna. सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा. तो भगवद गीता 10th chapter. Bhagavad Gita 10th chapter you can get 10th chapter of Bhagavad Gita, all of you. 10th chapter Bhagavad Gita 9th sloka 10.9. Bhagavad Gita 10.9. Bhagavad Gita 10.9, in which Lord is actually describing the whole summary of Bhagavad Gita. This is 4 slokas, 10.8, 10.9, 10.10 and 10.11. So these 4 slokas are celebrated to be Chatusloki Bhagavad Gita. These 4 slokas are celebrated as to be Chatusloki Bhagavad Gita. Chatusloki Bhagavad Gita. So 10.9 we will be discussing. So hopefully all of you have already got the 10.9 Bhagavad Gita. Okay. So we shall go ahead with the sloka. Macchitta madgat prana, macchitta madgat prana. You can recite together. Macchitta madgata prana, macchitta madgata prana. Bodhayanta parasparam, bodhayanta parasparam. Kathayantascha mam nityam, kathayantascha mam nityam. Tushyanti cha ramanti cha, tushyanti cha ramanti cha. Macchitta madgata prana, macchitta madgat prana. Bodhayanta parasparam. Kathayantascha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha. So this is Bhagavad Gita 10.9. Very sweet sloka. Very sweet sloka. So it's good that we can remember it. Once again we will say Macchitta madgata prana, bodhayantah parasparam. Kathayantascha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha, tushyanti cha ramanti cha. Okay, so word to word meaning. Someone can recite, if possible, someone can recite, it will be good. If one of you can recite, anybody? Macchitta madgata prana, bodhayantah parasparam, kathayantascha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha. Very nice. So, anybody else? Macchitta madgata prana, bodhayantah parasparam, kathayantascha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha. So, the translation of this sloka, I will say, 10, 10.5. Okay.
The thought of my pure devotees dwell in me. The thought of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Okay? So, purport by Srila Prabhupada. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaging in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing Him with other devotees. In the preliminary stage of devotional service, they release the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in love of Godhead. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, the seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also, that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavan, the supreme plant of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the glorious feet of Krishna and rests there. Gradually, as the plant grows, fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits. And the watering process in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in Chaitanya Charitamrita. It is explained there that when the complete plant takes shelter under the lotus feet of Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as a fish cannot live without water, in such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and His devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees. As we stated in Bhagavatam itself, 12, 13, 18, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and His devotee is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and a girl take pleasure in association. Thus ends the translation and purport of His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada from chapter 10, verse 9 of Srimad Bhagavad Gita. So, this sloka, ये जो श्लोक है बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए, क्योंकि because in this shloka the life is mentioned. Life, what is life? What is the life of a devotee? Life of a devotee is not a dry life. Dry life, understand? Usually in the material world there are two types of life: dry life and wet life. What is the meaning of wet life? People that drink
they live a better life. Those who want drink, they say it is dry life. Have you heard about this? कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे गुजरात पूरा ड्राई है, ड्राई। जो पियक्कड़ होते हैं बोलते हैं पूरा गुजरात को ड्राई कर दिया है मोदी, क्योंकि वहां पे दारू नहीं चलता है। तो हम दारू की बात नहीं कर रहे हैं, हम भक्तों की गुण के बारे में बात कर रहे हैं, भक्तों की जो नेचुरल क्वालिटीज होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मच्चित्ता मदगत प्राणा। भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं उनकी चित्त जो होती है वो भगवान में होती है। मच्चित्त मदगत प्राणा, और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड मतलब क्या? जीवन में कोई ना कोई आदमी तो किसी भी चीज के लिए डेडिकेटेड होता ही है कि नहीं? किसी न किसी चीज के लिए डेडिकेशन जरूरी है, और वो डिपेंड करता है अच्छी चीज के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, या फिर नॉनसेंस चीज के लिए समर्पित हैं। लेकिन समर्पण सबों के जीवन में किसी न किसी चीज के लिए होता है। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्तों का जो जीवन होता है भगवान की सेवा के लिए समर्पित होती है। मच्चित्ता मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, उनका जो प्राण होता है वो भगवान के चरण पे आश्रित होता है। बोधयंत परस परम, और उसके बाद क्या करते हैं? बोधयंत, बोधयंत मतलब एक दूसरे को जनाते हैं या फिर एक दूसरे को बोधन करते हैं। बोधन मतलब होता है कि एक दूसरे को एनलाइटन करना। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे के साथ क्या बोधयंत करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की बातों के बारे में, लीलाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, और हमेशा वो किसके बारे में बोलते हैं? माम नित्यम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मां, मेरे बारे में बोलते हैं। वो जब मिलते हैं जब दो लोग, तो किन के बारे में बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ है कि नहीं, आपके अंदर जीवन है या मृत है। तो दो तरह के लोग हैं ना, एक है कृष्णा कॉन्शियस और एक है नॉन कृष्णा कॉन्शियस। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो भगवान के भक्त नहीं है। और पहली बात तो अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर समझते हैं मतलब कि शरीर जो कि 5 चीजों के द्वारा बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और जो कि डेड है। तो अपने आप को पहले से मरा समझते हैं। अपने आप को वो क्या समझते हैं? हम मरे हुए हैं, क्योंकि अपने आप को समझते हैं वो शरीर है। तो उनको बोला जाता है कि दे आर लिविंग वॉकिंग कॉर्प्सेस। चलता फिरता मुर्दा को कोई देखा है क्या? चलता फिरता मुर्दा, शायद कि कोई देखा होगा, नहीं देखा है। मुर्दा चलता फिरता हो नहीं सकता। लेकिन जो कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं समझते, अपने आप को भगवान का अंश नहीं समझते हैं, भगवान की भक्ति में युक्त नहीं होते हैं, युक्त नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हुए हैं, वो एक चलता फिरता मुर्दा का ही जीवन जी रहे हैं। उनके लाइफ में, उनके अंदर में जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, चैतन्य। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब कि पूर्ण रूप से वो श्री कृष्ण के चेतना से परिपूर्ण है। और यही है लाइफ, यही है, मतलब कि सही में अगर देखा जाए तो यही है लाइफ, जिसमें लोग मजा करते हैं। यह है लाइफ, अन्यथा इट्स डेड, इट्स डेड ओनली। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। तो जब ये उनकी चित्त जो भगवान के चरण में होती है, भगवान के बारे में सुनते हैं भक्तों के साथ में, लेकिन जब वो बाहर में निकलते हैं जो कि भगवान के भक्त नहीं हैं, तो उनके साथ में उनकी जो शैली होती है, उनकी जो मतलब कि बात करने की जो शैली होती है, वो हमेशा कैसे होती है कि कैसे हम लोगों को भगवान के बारे में बताएं। कथयंतश्च माम नित्यम,
कथयंतश्च, कैसे भगवान के बारे में कथा बताएं दूसरों को कि दूसरों का कल्याण होगा। श्रीमद् भगवद गीता 10.9 के पर्पट में श्रील प्रभुपाद जी अभी बता रहे थे कि बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं, बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं, वो भगवान के नाम से उनका संपर्क होता है, हरे कृष्ण महामंत्र से। बहुत भाग्यवान। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोनो भाग्यवान जीव मतलब कि कोई शायद बिरले कोई होते हैं। वो भाग्यवान जीव, उस भाग्यवान जीव को क्या मिलता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है। गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लता बीज, पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत ही दुर्लभ है ये भक्ति लता बीज। लेकिन दुर्लभ क्यों है? क्यों है दुर्लभ? क्योंकि पहले तो भक्त लोग होते हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं। बहुत बार भक्त लोग को ऐसे निस्वार्थ होना चाहिए। भक्तों का, वैष्णव का गुण होता है कि उनके कुछ गुण श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवो शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः वो टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंट मतलब कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर को झेलते हैं, है ना। पीबीटी कंडीशंस, डिफरेंट पीबीटी कंडीशंस में वो अपना जो स्थिति है उसको बरकरार रखते हैं। ज़्यादा प्रेशर में वो मतलब प्रसारित नहीं हो जाते, ज़्यादा टेम्परेचर में उबलने नहीं लगते हैं ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देने से वो फूल के गुब्बारा नहीं बन जाते हैं, है ना। तो प्रत्येक पीबीटी कंडीशन में, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशन में, वो अपने आप को क्या रखते हैं? संयमित रखते हैं। लेकिन कारुणिक, संयमित रहते हुए वो दूसरे को भला करना चाहते हैं। यह भगवान के भक्तों का लक्षण। तो यही है बेसिस, यही है लाइफ भगवान के भक्तों का। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते थे, बोलते थे कि प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। जिनके पास प्राण है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रचार करेंगे। वो प्राण क्या है? वो प्राण है रमंती च तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब कि वो संतुष्ट रहते हैं भगवान की चर्चा भक्तों के साथ करते हुए, और रमंती च, और वो भगवान की जो चर्चाएं हैं उसको एक दूसरे के साथ ये एसिप्रिकेशन करके वो उनको अंदर से एक हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। इसको बोलते हैं रमंती च, तुष्यंती च रमंती च। तो ये है लाइफ, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम अन्य को बताता है। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों का जो उनका जो ड्यूटी है या फिर उनकी जो कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है यहाँ, बहुत बड़ा कर्तव्य। क्योंकि नाउ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर। केमिकल रिएक्शंस में एक रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, जिसके ना होने से वो केमिकल रिएक्शन कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस संसार में इतने सारे लोग जीव हैं, वो भगवान के नाम से परे हैं, और उनको वो जो रेट इनिशिएटर और रेट डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो है भगवान के भक्तों का संग। जब तक वो भगवान के भक्तों का संग नहीं करते हैं, भगवान के भक्तों का संग मतलब नहीं ये नहीं कि भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान के भक्त है लेकिन बात कर रहे हैं क्या सिनेमा वाला। अरे पता है बाहुबली तो बहुत पुराना हो गया, बहुत नाम से पहले सुना था इसलिए नाम मुख पे जबान पे आ जाती है। तो कोई भी है, तो भगवान के भक्तों का संग मतलब कि भगवान के भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। उसमें से बहुत सारे जीव हैं वो सतोगुण में हैं, कुछ लोग रजोगुण में हैं, बहुत सारे लोग तमोगुण में हैं। तो जब सतोगुण वाले जो लोग होते हैं वो भगवान के भक्तों के साथ संस्पर्श में आते हैं, तो क्या होता है कि वो उनके संस्पर्श में आने से भक्ति लता का बीज उनके हृदय में क्या होता है? रोपण होता है। क्या होता है? रोपण। और रोपण होने के बाद चालू होता है वो जर्नी, जिसमें वो उस बीज का सिंचन करते करते वो उस लता का, भक्ति की लता जो है उसको वो देख सकता है कि कैसे वो आगे बढ़ रही है और उसका जीवन कैसे सफल हो रहा है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर
भक्तों का कि वो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है, रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर, कि जीवों का भगवान के साथ जो संयोग है उसमें रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर है कौन भगवान के भक्त। भगवान नहीं आएंगे लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया ऐसा। भगवान श्री कृष्ण बोले मुझे सरेंडर करो, बस करना तो करो, नहीं तो खत्म, हरि बोल। उसके बाद तान हम दुष्टाम क्रूणान, सारे जितने क्रूर लोग हैं सबको मैं छिपामी अदस्त्रम अशुभान, सभी लोगों को मैं नरक में भेजूंगा, भगवान ने बोला। क्योंकि भगवान के पास वो ही सुप्रीम लॉर्ड, he comes of course out of great compassion for the living entities, but he's being a supreme lord, he cannot go down and tell living entities, oh living entities please take up chanting the holy name. That prerogative is only and only for the devotees of the Lord, भगवान के भक्तों के लिए। इसीलिए भगवान के भक्त के रूप में भगवान आए कि यार मैं भगवान के रूप में आया, बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर दे दिया, भगवत गीता का 5000 हो गए, इतने 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 महान इन लोग घमंडी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जीव छोटा सा जीव, लेकिन घमंड बहुत बड़ा है। वो सुनने के लिए रेडी नहीं है कि भगवान के चरण पे समर्पण करें। इसलिए वो भगवान अपने भक्त के रूप में आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, और फिर वही चीज नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्तों के साथ उसी चीज को फिर से समझाते हैं। तो भगवान भक्त के रूप में आया। जब भक्त के रूप में भगवान जब इतने पावरफुल मतलब मैग्निफिशेंटली क्या बोलते हैं उसको, मर्सीफुल हो सकते हैं, तो भगवान के भक्त ऑफ कोर्स। तो ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व है कि हमारे कांटेक्ट में जो कोई भी आए उनको हम भगवान के बारे में, या फिर उनको जो भगवान की भक्ति का जो प्रोग्राम्स चलता है, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की एक ऑर्गेनाइजेशनल अभिव्यक्ति है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल इनकार्नेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, and to connect people into the programs of this ISKCON is connecting with Chaitanya Mahaprabhu. To connect with the programs of this International Society of Krishna Consciousness to the living entities is actually nothing but connecting to the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So how much it is important, how much it's important to come out from our little comfort zone, come out from our little ओके मैन कम ऑन, इट्स लाइफ तो चल ही रहा है, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई टू वरी अबाउट अदर्स। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हम लोग भक्ति का जो सही का जो आनंद है, तो संति च रमंती च, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कलयुग ऐसा विकराल है कि ये विकराल स्थिति में भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो तभी प्राप्त होगा जब हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम लोग जीवों के लिए कुछ करेंगे, जो कि उनका परम आदेश है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञा, ये मेरी आज्ञा है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो सदा ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, और बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने हुए भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती। कोई भी हजारों लाखों साल तक हरे कृष्ण नाम का जप कर ले, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अरे लाखों हजारों साल तक बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सब कुछ छोड़ के जंगल में वो तपस्या करते थे, फिर भी उनको भगवान की भक्ति नहीं मिलती थी। भगवान की दूर की बात है, लेकिन अभी भगवान की भक्ति इतनी ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी आज्ञा का। और जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करता है उसको चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा की बारिश से उसको शॉवर करते हैं उसे। तो उस शॉवर जो कि रेन घनात्वम त्राणय कारुण्य घनात्व में करुणा का जो रेन है वो बरस रहा है। बस हमें चाहिए कि बाहर में अपना कंफर्ट जोन की जो छत है उसे निकल के थोड़ा उसमें नहाएं। तो बहुत जरूरी है, नहाएंगे तब क्या होगा,
हमारा अपना तो क्या होगा, संसार दावानल छूटेगा और अन्य जीवों का भी संसार दावानल छूटेगा। नहीं तो संसार दावानल लीढलोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो स्पिरिचुअल मास्टर is taking the mercy from the Lord Chaitanya Mahaprabhu, the ocean, the Karuna, Arnavasya, ocean of mercy, and he is showering the mercy upon living entities. And we are actually being the recipient of that mercy. And being the recipient of the mercy, we must also become the propagator and the supplier of that mercy. That's very, very important. अगर वो नहीं बन पाए तो क्या होगा कि really the mercy of the Supreme Lord will not pass through us. You know, the conductor, even though it's a good conductor, but it's not connected ahead with the bulb and something. Current is coming, but there is no potential drop. There is no use. Current will not pass through it, even though it's a big conductor. तो उसी तरीके से हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है उसका पालन करना अवश्य जरूरी है। हम लोग जानते हैं कि अभी IYC इंडिया यूथ केयर का प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, उस कॉन्टैक्ट्स के ऊपर में आप लोग कैसे फॉलोअप का स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसके ऊपर मीटिंग करना है। तो इसके बाद आप अपना भले वाट एवर टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके लिए, जीवों के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए हम लोग समय निकाल सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये प्रीति प्रदान करता है या फिर ये उनको आनंद प्रदान करता है। नहीं तो अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो कौन नहीं जीता है, सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं जीते वो अपने लिए नहीं भी जीते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम हैं कौन। अपने आप को शरीर समझते हैं, सोचते हैं कि हम अपने लिए जीते हैं और इस तरीके से शरीर के लिए जीते जीते अपना शरीर त्याग देते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि पेड़ भी दूसरों के लिए जीता है। पेड़ अपना फूल, पेड़ अपना फल, पेड़ अपना छाल, पेड़ अपना लकड़ी, सब कुछ जो कि पूर्ण रूप से आच्छादित चेतना का जीव है वो भी इतना देता है। तो हम जैसे मनुष्यों की जिसकी चेतना इतनी ज़्यादा विकसित है वो क्या न दे, वो क्या नहीं दे सकता है। वो क्या दे सकता है, सबके लिए सब कुछ है। सबसे बड़ा चीज़ जो कि मनुष्य दे सकता है वो कि भगवान की भक्ति, जब वो उसके पास खुद भक्ति है, इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं दे सकता। देयर इज नथिंग मोर beneficial for the living entities other than this devotional service that we can actually give to them, and that will create a revolution into their life, विप्लव। and उसके बाद उसके सारी समस्याएं चुटकी में समाप्त हो जाएंगी। तो कितना जरूरी है कि हम लोग भक्ति में आए हैं तो उस भक्ति को दूसरों को बताएं। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और इस तरीके से भगवान के जो भक्त होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त होते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इंस्ट्रूमेंट बनते हैं न जाने कितने सारे जीवों को फिर से भगवान श्री कृष्ण जो कि जिनका जो संबंध है, नित्य संबंध जीवों का, उसको भूल चुके हैं, उसको फिर से कनेक्ट करने के लिए। तो प्रत्येक जीवों का, प्रत्येक भगवान के भक्तों का यह कर्तव्य है। ईच वन, पहले एक प्रवर्ब था, ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। मतलब प्रत्येक एक आदमी को पकड़ के उसको प्रचार करो, भगवान के बारे में बताओ। तो अभी तो सोशल मीडिया के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है लोगों के पास पहुंचने का। फ़ोन कर सकते हैं, जूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, पता नहीं कब तक ये चलेगा चीज़ें नॉर्मल होने में। तो स्टिल वी कैन ट्राई ईच वन टीच वन और ईच वन सींच वन। सींच वन मतलब कि इरिगेशन, गिव सम कृष्णा कॉन्शियस स्टफ, little lecture, little talk, or summoning someone to come to the program. So this is the way. So
If you have any question, anything, we can discuss. Hare Krishna.